जस्ट 5 मिनट्स वेट करते हैं, उसके बाद स्वास्तिका आप शुरू कर देना, आपका टॉपिक है जो प्राइवेट कंपनी। एंड सब लोग साथ में लिखेंगे, जो भी सब लोग बोलने वाले हैं वो साथ साथ में आपको राइट डाउन करने हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो एक कॉपी बना लो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखने की, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आप लोग कीवर्ड लिख सको। ओके। या Hello, am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। Okay. Hi everyone, I'm Swastika Bhattacharjee and my topic is private company. So, as per section 2 clause 68 of the Companies Act 2013, private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles, 3 points. First, restricts the right to transfer the shares of the company. Second, except in case of OPC, limits the number of members to 200. And third, prohibits an invitation to public to subscribe the securities of the company. So let's just understand each and every point. First point, which was restricts the right to transfer the shares of the company. Here, shares of public private company are transferable, but they are not freely transferable. They are not prohibited, but they are restricted. So this in this case, the shares of private company can never be listed on the recognized stock exchange. But however, there is no restriction in the transfer of the debentures. So the debentures can be freely transferable, and there can be they can be even be listed on the recognized stock exchange. For example, Lotus Green Construction Private Limited and Genpact India Private Limited. These are the two examples over here. Second point, which was except in case of OPC, limits the number of members to 200. So, as we can say that the members in a private company has to be limited up to 200. But and if there's any joint holders, like if there's two joint holders, then it will be counted as one joint. And there's a further condition which is provided further that the persons who are in the employment of the company and the persons who formerly were in employment of the company and members also have continue to remain the members, which is that is the former employment who were in former employment, they shall also be not counted in the limit of 200. And the third point, which was prohibits an invitation to public to subscribe the securities of the company. So here, this means that a private company cannot make general offer to public. That is, there's a strict prohibition. It is just not restricted like the first one. It is prohibited that the private company cannot list their securities. That is, they cannot make a general offer to public, but they can make private placement. That is, they can make the public company to subscribe any shares of debentures. That is, it cannot make an IPO, that is initial public offer. However, it is allowed to issue shares or debentures, etc., to outsiders by making a specific offer, that is private placement. So we have got small questions which clears the topic more, actually. So which is private companies shares transferable? The answer is yes, as there's a restriction. They are not freely transferable, but they are transferable. Is private companies' debentures transferable? Yes, they are freely transferable without any restriction. Can private companies' shares be listed? Yeah, no, private company shares cannot be listed, but the debentures can be listed. Can private company bring IPO of shares? No, but the private company can bring IPO of debentures. And can private company issue shares to outsiders? Yes, by specific offer, but not general offer. And in the same in the case of debentures, not just shares. There's a restriction, that is, there's prohibition in case of both debentures and shares. So this is all about private company and the concept. Do I need to give the master problem? Hello, where are you? यस स्वास्तिका। हाँ जी, मेरे को मास्टर प्रॉब्लम हाउ टू गिव, मतलब हाउ टू से द मास्टर प्रॉब्लम, लाइक शुड आई जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन एंड देन द आंसर और व्हाट? नो, जो क्वेश्चंस होंगे एक्चुअली वो मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। सो उसकी फोटोज आप भेज देना ग्रुप में, हम सब क्वेश्चंस को टोटल मिला के मॉर्निंग में प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक अभी समझ लेते हैं, टॉपिक का कंसेप्ट क्या है। एंड सो आप दिस इज ऑल सितंबर। अबाउट प्राइवेट कंपनी, हो गया ना? यस, बहुत, इट वाज सच अ वंडरफुल स्पीच, थैंक यू सो मच स्वास्तिका। नेक्स्ट टॉपिक अभी किसका है? थैंक यू, अब आप अनम्यूट कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट इज सब्सिडरी कंपनी। May उदय। यस, I? सब्सिडरी टॉपिक आपका है। लेट्स गेट स्टार्टेड।
subsidiary company is a company defined under Section 2, Clause 87 of the Companies Act 2013. Subsidiary company means a company in relation to any other company in which the holding company controls the composition of board of directors or exercises or control more than one half of the total voting power, either on its own or together with one or more subsidiaries. एंड कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर ये होता है कि इफ अ पर्सन विच इज होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स majority or all of the directors of that holding subsidiary company, then it means कि it is controlling the composition of board of directors. And such such holding companies shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed, which is 2 layers. Uh, a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the control is of another company of the holding company. For example, if A Limited holds 60% of shares in B Limited and B Limited holds 100% of C Limited, then C Limited is a deemed subsidiary of A Limited, which is the concept of deemed subsidiary. Okay. Uh, Shares held by a company or power exercisable by it in another company in fiduciary capacity shall not be counted for the purpose of determining the holding subsidiary relationship. Which and fiduciary capacity means in capacity of trust. फॉर एग्जाम्पल अगर एक महीने के लिए अगर मैं अब्रॉड जाता हूँ और मैंने अपनी कार अपने दोस्त को दी है होल्ड करने के लिए, तो वो उस कार का मालिक नहीं बन जाएगा, मालिक अभी भी मैं ही रहूँगा, बट वो वो उसके भरोसे पर होल्ड करने के लिए दिए ना, तो वो उसका ओनरशिप हो जाएगा, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में ओनर माना जाएगा, बट वो कोई रिलेशन नहीं बनाएगा कि मैं होल्डिंग और वो सब्सिडियरी। एंड बस, और एक इंडिविजुअल होल्ड नहीं कर सकता, होल्डिंग कंपनी के लिए वो कंपनी होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल किसी कंपनी में होल्ड करता है ना शेयर, तो वो होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। और क्वेश्चन क्वेश्चन अभी बताऊँ या क्या क्या करना है? क्वेश्चन वॉइस नहीं आता। क्वेश्चंस की बाद में कलेक्टिवली फोटो भेज दी जाएगी और क्वेश्चंस बाद में प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन रेडी रखना। अच्छा, Now you can unmute, तो unmute सब्सिडियरी yourself. Yes, it was such a great. Thank you so much, Uday. And next topic, सभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स साथ साथ लिखते रहना। एंड ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, आप हिंदी में भी कंसेप्ट्स को समझा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आशुतोष। आशुतोष आशुतोष आइए। हेलो एवरीवन। तो आज हम फॉरेन कंपनी के बारे में जानेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। जो भी कंपनी है और या तो बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया हुई है, वो फॉरेन कंपनी है। There should be two conditions to be fulfilled for a foreign company. The number one condition, he has place of business in India, whether by itself or through agent, physically or any online mode. और second condition है, conduct any business activity in India by in India. There should be two condition, और ये दो condition fulfill हुआ तो it's a foreign company. That's it. आशुतोष क्वेश्चंस है ना आपके पास इसके रेडी? ये बहुत छोटा सा टॉपिक है तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पर, एक दो होंगे मैक्सिमम दो। ओके, सो एसोसिएट कंपनी का जिया का था, उनके इलेक्ट्रॉनिक मतलब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है। क्या एसोसिएट कंपनी भी एक्सप्लेन कर सकते हो आशुतोष? आशुतोष मतलब 1 मिनट ही लगेगा, मैं 20%। जिया की जगह पे मैं बोलना चाहता हूँ। हेलो। ओके, बासु आप हो? ठीक है, बासु आप हो? यस। बासु है। ओके आशुतोष, ठीक है थैंक मैं यू। बाशुतोष, आशुतोष आप म्यूट कर सकते हो।
ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मतलब व्हाट इज एसोसिएट कंपनी। पहले मैं इसका डेफिनेशन इंग्लिश में बोलता हूँ और फिर मैं समझा भी देता हूँ। ऑलराइट, सो एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इसका मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका दूसरे कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, मतलब अगर 20% अगर वोटिंग पावर है किसी कंपनी में, जैसे कि मतलब एक कंपनी लेते हैं ए, ठीक है, एक कंपनी है और एक कंपनी बी है। तो ए ने मतलब बी का 20% से ज्यादा अगर होल्डिंग किया तो वो उसको हम बोलेंगे सीनियर इन्फ्लुएंस। और ऐसा अगर हो जाता है तो फिर हम उसी को बोलते हैं एसेट कंपनी। तो फिर ए इज, तो ए मतलब एक एसेट कंपनी नहीं है बी का, लेकिन बी एक एसेट कंपनी ए का। आपको समझना पड़ेगा, मतलब सिंगल वे डबल वे नहीं है। जिसको आप मतलब होल्ड कर रहे हैं वो एसेट कंपनी बनेगा। और फिर इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे एक सब्सिडरी को। मतलब आपने मतलब होल्डिंग किया है 20% ज्यादा, लेकिन वो 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो सब्सिडरी बन जाएगा, तो उसको हम नहीं लेंगे। और एक बात इसमें हम लिंक करेंगे ज्वाइंट वेंचर। ठीक, तो ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है कि मतलब दो कंपनी अगर कोई एग्रीमेंट करता है कि हम लोग कुछ काम करेंगे साथ में, तो उसको भी मतलब हम लोग ऐसे कंपनी में डाल देते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट आ गया आपका। पहला बात सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, 20% अगर किसी का मतलब कंट्रोल है, तो जिस पे कंट्रोल है वो आपका एसेट बन जाएगा। ठीक है। और ज्वाइंट वेंचर प्लस आपने काम करा एग्रीमेंट से, तो वो भी एसेट बन जाएगा। ठीक है, that's it। ओके आशुतोष, ओके सॉरी बासु, आप म्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक नितेश का है। नितेश, अनम्यूट कीजिए। Yes, am I audible? Okay. तो मेरा टॉपिक है बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। मतलब अपन को ये समझना है इस पे कि इनकम टैक्स है क्या, क्यों आया, ये समझना है अपन को। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये टैक्स है क्या। तो मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज बाय गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट आपको इम्पोज करती है कि आपको इतना फाइनेंशियली क्या बोल सकते हो कि मतलब अमाउंट मॉनेटरी टर्म पे अपन को इतना अमाउंट देना है। इसको अपन बोलते हैं टैक्स। मतलब अगर गवर्नमेंट बताती है कि आप स्पेसिफाई करती है कि आपको इतना इतना आपके इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, तो इसे अपन टैक्स बोलते हैं। तो टैक्स क्यों दिया जाता है, वाई वी गिव टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या है कि अपने सोसाइटी पे कुछ एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर करती है फॉर द मीट ऑफ कॉमन वेलफेयर। तो अपन क्या करते हैं, इसीलिए उस गवर्नमेंट को वो टैक्स देते हैं। तो ये हो गया अपन क्या टैक्स है और क्यों देते हैं। अब बात करते हैं कि मतलब किसको कितना देना पड़ेगा, टैक्स रेट क्या है। तो उन्होंने पहले तो पर्सन आइडेंटिफाई किया कि किसको किसको टैक्स देना है, मतलब कौन कौन इनकम कमाते हैं इस मतलब इस वर्ड पे। तो उनको पहले पीपल आइडेंटिफाई किया कि किसको टैक्स बनना है। तो सबसे पहले आए इंडिविजुअल, एच कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये टोटल 9% हो गए। अब इनको गवर्नमेंट ने बताया कि आपको इतना इतना टैक्स देना है। तो सबसे पहले ये सोचा उन्होंने कि 9% है, तो 9% को तो अपन दे नहीं, एक एक टैक्स दे नहीं सकते। तो उन्होंने सबसे पहले 5% को पकड़ा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओआई, बीओआई और एजीपी। एजीपी मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उसका क्या टैक्स रेट बताया कि आप अगर ये 5 लोग, अगर आप 5 लोग 2.5 लाख तक इनकम कमाते हो तो आपको टैक्स नहीं देना, आप फ्री हो, आप मत आना मेरे पास टैक्स देना। बट अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, 5 लाख तक, तो आप अपने इनकम का 5% मेरे को देना। बट अगर 5% से ज्यादा कमाते हो, तो 5 लाख से ज्यादा कमाते हो और अप टू 10 लाख तक, तो आपको 20% देना है। और अगर 10 लाख से अबव हुआ तो आपको 30% देना है। ये 5 लोगों का हो गया। अब इसी पे अगर इंडिविजुअल की बात करें, तो जब ये क्या बोल सकते लॉ आया, तो उन्होंने ओवर द टाइम रियलाइज किया कि यार इंडिविजुअल के लिए कुछ ज्यादा ही मैंने कर दिया, मतलब ज्यादा ही कम रेट, कम पैसे पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने 3 लाख पे उनको किया, 2.5 लाख से 3 लाख पे इंडिविजुअल के लिए आया। इसके लिए जो सीनियर सिटीजन हो प्लस रेसिडेंट हो, मतलब मैं एक रेसिडेंट हूँ और अगर सीनियर सिटीजन हो, तो मेरे पे 2.5 लाख पे नहीं लगेगा, मेरे को 3 लाख से स्टार्ट होगा टैक्स। और ऐसे ही फिर से उनको रियलाइज हुआ तो ये चीज 5 लाख तक कर दिया। मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन हो और रेसिडेंट हो तो आपको 5 लाख तक का
5 लाख तक से टैक्स रेट स्टार्ट होगा। ये हो गया आपका, ये 5 लोगों का। बात आती है कंपनीज की। तो कंपनीज पे अपन, कंपनी दो टाइप की होती है, अगर लेमन लैंग्वेज बोलूँ तो डोमेस्टिक और फॉरेन। तो डोमेस्टिक के लिए अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021-22 पे 400 करोड़ तक है टर्नओवर, तो आपको 25% लगेगा आपके इनकम पे, नॉट ए टर्नओवर। आप याद रखना, टर्नओवर मैंने बोला है, मतलब 21-22 पे टर्नओवर 400 हो, और उस पे अगर 400 है तो 25% लगेगा इनकम पे। ओके। देन अगर 400 से अधिक जाता है तो आपको 30% लगेगा आपके इनकम पे। और अब बात आती है फॉरेन कंपनी की। तो फॉरेन, अब देखो, फॉरेन कंपनी तो बाहर की है, तो उन पे तो ज्यादा ही टैक्स लगाएंगे, तो अपन ने 40 लगा दिया, इसमें 40%। ओके, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू नितेश। अभी आप म्यूट कर थैंक यू। सकते हो। सो गाइज, ये मीटिंग आज इतनी ही थी, 5 ही टॉपिक्स करने थे कवर। एंड ये एक ट्रायल था कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। अभी सिर्फ 21 मिनट्स हुए हैं, और ये एक एक्चुअली एक टाइम हैक है। काफ़ी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। कल से सेम टाइमिंग रहेगी। अभी जो आज टॉपिक्स हुए हैं उनकी एग्जांपल्स और इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कलेक्ट कर लूँगा और आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट क्या होगा, कल इसके ऑरल टेस्ट होंगे, कल सेम टाइम। बट मीटिंग थोड़ी लंबी होगी। आज एक ट्रायल था, हमें पता लग गया कैसी कैसी चीज़ें होंगी। टाइमिंग का सबको देखना है, और ऐसा नहीं सबको इंग्लिश में ही बोलना है। आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकल वर्ड से लेकर प्रैक्टिकल वर्ल्ड की जो जितनी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो आप लेकर आ सकते हो, और खुद भी एग्जाम्पल को बना सकते हो। एंड क्वेश्चंस आप ग्रुप में भेज दिया करोगे, और सुबह सबको 4 बजे जिनको उठना है वो बता सकते हैं। जिनको जो विलिंग है, जबरदस्ती किसी को नहीं उठाएंगे 4 बजे। जिनको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना है वो बता देंगे, और सबको उठा दिया जाएगा। एंड ये सारी मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड भी हो चुकी है, और ये अपलोड भी होगी यूट्यूब चैनल पर बाय द नेम द सीए रैंकर्स शो। एंड 20 मिनट्स में हमारे 5 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। कल पूरे फुल टॉपिक्स होंगे, जिनके आज नहीं हुआ उनका कल हो जाएगा। एंड दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाकी ये लोग जो आए हैं वो फाइनल हैं, जो नहीं आए, यस, सो हम जिनको भी बात करनी है वो कॉल कर सकते हैं अभी इस मीटिंग के बाद। जिनको भी कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं। एंड यस, ये मीटिंग अपलोड होने वाली है। एंड बस आज के दिन ही ये था कि कम टाइम में 5 टॉपिक्स, हमने ट्रायल देखना था कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी। एंड इट वेंट वेल। इट वॉज सच्ची, मतलब एक टाइम हैक है कि 20 मिनट्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। एक स्टूडेंट नहीं कर पाता इतना सारा डाटा इतने कम टाइम में। ओके, यू गाइस कैन कॉल एंड यू गाइस कैन लीव। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। दिन के 4 बजे। तो फाइनली सुबह के 4 बजने वाले हैं, और हम सबको कॉल्स करके उठाने वाले हैं क्वेश्चंस करने के लिए। तो सबसे पहली कॉल जाती है स्वास्तिका को। नेट ऑफ है, कोई नहीं, दूसरी कॉल करेंगे। एंड कितनी कॉल्स करनी है? जब तक उठते नहीं तब तक। कम से कम 15 कॉल्स तो जाएंगी। जब तक नहीं उठेंगे तब तक तो कॉल्स करनी है। हेलो, उठ जाओ क्वेश्चंस करने के लिए। ओके, अभी फिर से मत सोना। ओके बाय, ठीक है। सो पहला कैंडिडेट उठ चुका है गाइस। नेक्स्ट बारी कितनी अच्छी है यार स्वास्तिका, दो पहले बार में कॉल उठा ली। अभी नितेश की बारी। नितेश ने बोला था उठाने को, चलो नेक्स्ट कंटेस्टेंट। रिंगिंग आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये बंदा अच्छा है। नेट ऑन करके सोना, किसी ने शैतानी नहीं करनी, और स्विच ऑफ करके सो गए फ़ोन, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कब तक कॉल जानी है? जब तक नहीं उठाते।
या फिर 15, विच एवर इज विच एवर इज लोअर। रिंगिंग जा रही है बट दूसरी कॉल करते हैं, सिंपल कॉल। कॉल इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस नंबर। कोई नहीं, फिर से सिंपल कॉल ही करेंगे। उठ जा यार। हेलो, उठ जाओ, सुबह हो गई, 4 बज गए। नितेश, फिर से नहीं सोना अभी, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करने हैं, आँख हाथ मुंह धो और क्वेश्चंस करने बैठ जाओ। ओके, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। अरे ऑल द बेस्ट। ओके, देखो 2 कंटेस्टेंट्स थे, उठ चुके हैं, अभी बाकी की कॉल्स करनी है एंड सारी दिखाऊंगा क्या? अभी बस करो यार, भरोसा कर लो, सब सच में उठा रहे हैं सबको।